Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear audience and respectable speakers. This is our 20th professional webinar on topic of managing work remotely. तो हस्बे साहब का आज भी हमारे साथ स्पीकर हैं जो जिनका एचआर और मैनेजमेंट में वास्ट एक्सपीरियंस है। साकिब रियाज साहब, he is a HR VP Business Division Telenor presently, and he has more than 8 years experience in HR and has a passion for philanthropy through community outreach. He has the ability to for handling challenging situations, seeing solutions that are beyond the box, and constantly pushing forward towards helping others achieve their potential. Zakir Saab, isse kabal, he also served in Koshali Bank as a OD specialist, worked as a advisory service manager at EY. Today we are happy to have him with us. Khurram Ali Khan Saab hain, CEO of ASK Development. He has a PhD in economics, holding a degree in as a CA, and a vast experience in and outside Pakistan in management, financial management, and social media as well. So luckily, I can see Dr. Shahida Sajjad Saba has also joined us. So Dr. Saba, we will be seeking knowledge from you as well. And let us start today's proceedings, and then we will. Then I will ask our what the speakers share their knowledge. हमारा आज का टॉपिक बेसिकली वर्किंग रिमोटली। तो सब जानते हैं कि ऑफिस स्पेस से बाहर, एम्प्लॉयर स्पेस से बाहर काम करना, ये रिमोट वर्क कहलाता है। अब इसकी बेनिफिट्स और कास्ट क्या हो सकती है एंड हाउ वी कैन मैनेज, ये आज का हमारा मौजू है। वी विल स्टार्ट विद साकिब रियाज साहब, सो प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। Actually, great. Thank you so much for having me and for this opportunity as well. And I think you've picked a very interesting topic, right? So remote work is a very hotly debated topic, and everybody sort of has their own viewpoint on it. But the biggest tussle is between your managers and then your employees, right? वहाँ पे ही आपकी major लड़ाई exist करती है. Your employees want to have more remote opportunities. Your managers want the employees to be in the office, and it's just this constant tug of war, right? So sort of understanding that perspective and that sort of mindset, why एक तरफ से आपको बहुत ज़्यादा demand and एक तरफ से बहुत ज़्यादा resistance है, that's very important to really shed light on the issue behind remote working. So by virtue of remote working and its definition and everything, it's something that is of significant benefit to employees and organizations both, right? There's factors of, there's cost saving, there's a travel cost, there's a fuel cost. आजकल fuel जितनी महंगी हो रही है, there's that savings for employees, right? For organizations, there's an office and space saving and electricity cost that goes down, right? And so that's one side of the argument. A lot of employees feel that they get more productivity, they have more free time to manage their schedule and their work, and it really enables them to, balance their life better. And if you look at it from historically, the remote work has really gained a lot of prominence because of after COVID-19, right? COVID basically demonstrated that it is possible for employees to work from home. It is possible for them to be productive and to show results, regardless of the fact that they're in the office or outside of the office. Because COVID pandemic khatam ho gaya hai, and we have a lot of this focus now that managers want and organizational people back in the office. But now there's resistance that why should we come back to the office jab humne demonstrate kar diya hai that we can be productive from not being in the office. So there's a lot of arguments on either side, right? The argument from the organization side is that it offers opportunity for serendipity, right? This is one of the things that Apple has been very prominent about, creation of solutions that, coming up with ideas together on the spot because of that connection with other people. Work relationship establishment is also an important area as well. People that are remote may not have that ability to build those strong relationships. So while the side of the argument does exist, I think most of the evidence, and my belief is that most of the evidence does support that you need to have remote work. Regardless of whatever personal opinions people may have, it's important to have this facility available, and it's something that has now become a very important differentiator for organizations in terms of hiring and retaining talent, right? You will find people are willing to take a pay cut
to move into a role that's fully remote or hybrid because it offers them more flexibility and more convenience, right? I mean, I can speak from my example. I have a 9-month-old kid, right? And having that ability to work from home on a hybrid schedule is a blessing for me as well. So from my personal experience as well, it's a very important sort of benefit that I have. And if I were to ever decide to move to another organization in my career, I would always be a factor now because I know the value it offers me. So it's become this thing that managers and organizations are still in this old school of thought that we don't want to change and we still want people here. And employees are now very, very clear that this is something that they want because they've seen the benefit from it to their life and their personal sort of mental health as well. So this is always going to be a tussle, but the evidence and the research and everything points towards the benefit of the employee. That yes, remote working is there, it is here to stay, and it needs to stay. So yeah, that's sort of my overview. Thank you very much sharing your thoughts. तो वरुण साहब आप इसको कैसे देखते हैं? आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी. मेरे थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इसलिए कि अगेन वी आर ह्यूमंस डीलिंग विद ह्यूमंस. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और फ्रैंकली कोविड के बाद नो डाउट कि हमने इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया कि जी रिमोटली भी काम हो सकता है. और बेताशा कॉस्ट कट की जैसे बात की, बेताशा ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मॉडल चेंज कर लिए इसलिए कि उन्हें मेजर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम मिली, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बच रहे थे. पीपल आर रेडी, जैसे भी बात हुई कि रेडी टू हैव अ पे कट, इवन कि वो घर से काम करें, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, टाइम बचेगा, जो आने जाने के 2 घंटे की हासिल होती है बच जाएगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जहां पे ना इंटेग्रिटी इश्यूज आ जाना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि होता क्या है कि लोग रिमोटली वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको काम पूरा करना है. इफ यू आर वर्किंग, आप काम पूरा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड. एक जमाना था जब कोविड था, तो कोविड में तो आपकी मजबूरी इसलिए थी कि हर बंदा ही था, चीजें नहीं थी, कोरियर्स नहीं थे, चीजें नहीं थी, तो हर मतलब दूसरे ऑफिस में फिजिकल मूवमेंट थी ही नहीं, तो यू हैव टू वर्क रिमोटली. अब प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे लोग डिसबैलेंस हो गए, जहां पे बैलेंस नहीं कर सके और जहां पे रेजिस्टेंस आना शुरू हुई. रेजिस्टेंस आना कैसे शुरू हुई कि लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो करना छोड़ दिया. लोग क्यों रिमोटली काम करना चाह रहे थे? वो 2 जॉब्स करना चाहते थे. वो आपके कॉस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज पेइंग 100%, एक्सपेक्टिंग पीपल टू वर्क, एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी देयर टू आंसर देयर ईमेल्स, टू रिसीव कॉल्स, और वहां पे गैप आना शुरू हो गया. तो मैनेजिंग वर्क रिमोटली इज इन वेरी फ्रैंकली एसेंशियल, और इसके बहुत प्लस हैं डेफिनेटली. अभी भी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये किया जी 4 days वीक जो है उन्होंने वर्किंग कर लिया, बाकी 1 day उन्होंने जाके उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप 1 या 2 days आप रिमोटली काम कर लें. प्रॉब्लम कहां पे आना शुरू हुई? प्रॉब्लम वहां पे आना शुरू हुई जहां पे अभी भी काम रुक गए हैं. अब लोगों ने कर दिया, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए कि लोगों ने एक बहुत बड़े डिबेट की कि जैसे सैप बैंक का आया था, HSBC का, तो सीईओ ने कहा कि जब मैं कोविड में ट्रस्ट कर सकता था अपने लोगों पे कि घर से बैठ के काम करेंगे, तो अब मैं क्यों नहीं कर सकता. विच इज वेरी गुड एज एंटरप्रेन्योरशिप. एक प्रिंसिपल्स की बात करें, जो बात अभी सब कह रहे थे, साकिब साहब कह रहे थे, बड़े अच्छी. बट प्रॉब्लम क्या आना शुरू हुई लोगों की कि काम रुक गए. हमारी कंपनी का एक असाइनमेंट था एक हमारे क्लाइंट के साथ, और वो असाइनमेंट कंप्लीट होना था, सैटरडे मॉर्निंग में हो जाना था. वो कंपनी जो है वो फ्राइडे सैटरडे काम करती है. प्रॉब्लम ये हुआ कि जी फ्राइडे सैटरडे कुछ भी नहीं हो सका. उन्होंने कहा जी आज तो वर्क फ्रॉम होम है. तो मैनेजिंग वर्क रिमोटली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तमाम पैरामीटर्स करें और प्लान प्रॉपर्ली करें. मैनेजिंग वर्क रिमोटली का मतलब ये नहीं है कि हम घर बैठ के जाके और हमने घर से काम किया, हम घर में जो है वो अपने तमाम काम भी निपटा रहे हैं, हम एक और जॉब भी करना चाह रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटेग्रिटी के साथ काम करना, जिसके लिए मेरे ख्याल में एजुकेट करने की जरूरत है. कोविड तो एकदम आया था, सर पे पड़ गया था, तो जो लोग ऐसे थे जिनको अंदाजा था, बाहर होता है, हम भी करते थे, जब ग्रुप से बाहर थे तो अक्सर बेशतर हम लोग वंस अ वीक एक दिन हमारा वर्क फ्रॉम होम होता था. हम ऑफिस आ भी सकते थे, हम ऑफिस आए तो कैजुअल्स में आते थे, अदरवाइज हम घर से भी काम कर सकते थे. यहाँ पे कल्चर डेवलप होने में टाइम लग रहा है, और लोगों को ये एहसास दिलाना कि छुट्टी नहीं है. वर्क रिमोटली का मतलब है, और वर्क रिमोटली डजंट मीन कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. अब एट टाइम्स आप मल्टीपल ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आप हेड ऑफिस में डिप्यूट होते हैं, बट आपने फैक्ट्री को देखना होता है, इस तरह की चीजें होती है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जी इसको बैलेंस करना सीखा जाए. बैलेंसिंग ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेबल भी है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं. इसके प्लस पॉइंट इस तरह है कि इसमें कॉस्ट बहुत कम हो जाती है. आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए उनका टाइम बचता है, उनकी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचती है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट हैज टू बी प्लान प्रॉपर्ली. एज ए प्लान किया जाए और एजुकेट करने की जरूरत है.
सही, बिल्कुल सही। हफ्सा नासिर भी यही आपके पॉइंट से एग्री कर रही हैं कि वी नीड अ सेपरेट प्लेस, अदरवाइज लोग दो दो जॉब करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, डॉक्टर शाहिदा, कैन यू जॉइन अस प्लीज, इफ यू अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आप डॉक्टर साहब ये बताइए, जो अभी हमारी क्वेश्चन भी ये इस सूरत में कमेंट एक तरह से आया है कि अगर एक एम्प्लाई हु इज वर्किंग रिमोटली, मे बी फ्रॉम द होम और समवेयर एल्स, अगर अपने एम्प्लॉयर के दिए हुए क्राइटेरिया को और परफॉर्मेंस को या प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर रहा, तो हमें क्या जरूरी है कि हम ये पूछें और उसके पीछे जाएं कि वो 2 जॉब कर रहा है कि 1 कर रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आकिफ, बात ये होती है, ये है पर्सनल आपकी ऑनेस्टी की, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अभी जब कोविड के बाद से जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, स्पेशली मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करती हूँ, तो एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें भी यही था कि टीचर्स को उन्होंने लॉग इन हुए मगर वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे और एक वक्त में बहुत सारे लोगों को उन्होंने फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो देखिए, ये अपना ईमानदारी अपने अंदर होती है कि आप उसमें काम करें नहीं करें। जहां तक आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर ये कोई पूछे नहीं पूछे, ये तो वैसे भी है कि आप एक वक्त में 2 जॉब्स कर सकते हैं, नहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज शामिल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मुझे लगता है कि कामयाब होगा, लेकिन 100% नहीं। जहाँ जरूरत है, शॉर्ट कोर्सेज के लिए अच्छा है, या आपकी जो समर सेमेस्टर्स हैं जहाँ पे बच्चों की या स्टूडेंट्स की डेफिशिएंसीज हैं, वहां आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्टूडेंट मुल्क से बाहर चला गया तो बजाय इसके वो मिस करे आपका, वहां आप उसको चांस दे सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग तो बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन हमें इसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बाहर के मुल्कों में, जहाँ अब भी यूएसए में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो अब भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं कोविड के बाद से भी, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस मॉडल को किस तरह फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट्स करके हम अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा, साकिब साहब, क्या अभी ये जो गुफ्तगू हमारी जिस तरफ जा रही है, और हमें मिस्टर हसन का कमेंट भी आए हैं, हफ्सा नासिर के हैं, खालिद भट्ट साहब के मुख्तलिफ कमेंट्स हम अभी शायद देख रहे हों, कि क्या ये कल्चरल इशू है हमारे यहाँ कि हमारे लोग उसको ऑनेस्टी का उस तरह से इजहार नहीं कर पाते, कमिटमेंट का उस तरह से नहीं कर पाते? So there are a couple of factors you have to consider, right? Look, while I respect everyone's opinion on this and everything, I do have certain disagreements, right? Look, अगर आपके लोग productive नहीं है, if they're not performing, so it's not just about is it that the individual is not showing the right integrity, right, or they're not adhering to everything. It's about also how effective is your goal setting, how effective is your KPI setting, right? So very clearly, if you have a very clearly defined output for what your expectations are from your employees, and the understanding is, and the organization's culture is built around self-accountability, so then you really don't need to chase people. If the results are there, they're providing the output that is required by the organization, and they're even going above and beyond on instances, so then that means the system works. Yes, but I do agree with the sentiment that there is a necessity to educate people, but there's also a necessity to have a good policy and structure in place. If your structure is not there, then obviously people are going to abuse it, right? And it's a learning process. So it's less about cultural from a local context, but more about culture from an organization, right? Does your organization's culture, does it promote self-accountability? If it does, you won't have this issue. Does your organization have a robust and strong goal-setting system in place? If it does, then yes, people will be producing output, right? But if you're leaving room and you're creating the space, obviously there has to be some freedom also allocated to employees, right? You're not supposed to be policing everybody all the time. And that trust factor is there. But then I agree, if there are people that are abusing the system, that you need to take actions as well accordingly, right? You need to be very, very clear. So when you reinforce bad behavior negatively, then people understand that's not the behavior they have. And when you reinforce good behavior positively, then you create that as a part of your culture, right? But again, all of this has to come from the top. And if your leadership and your other organization is supporting this and they're adhering to it and they're emulating these behaviors and these values and these aspects, then you will see it across the board in the organization. Okay, thank you very much. अच्छा, खुर्रम साहब, आप की बैकग्राउंड फाइनेंस की है, यू आर एक्सपर्ट रादर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल हु इज एन एम्प्लॉय and the employer which is an organization,
इन टर्म्स ऑफ मनी इनकी कास्ट या बेनिफिट क्या हो सकता है? जैसे मैं एक रिसर्च देख रहा था तो उनका ख्याल था कि वर्किंग इन एन ऑफिस इज ट्वाइस एक्सपेंसिव इफ समबडी इज वर्किंग रिमोटली फ्रॉम द वर्क प्लेस। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो वर्क एट होम है, इम्प्लाई को भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन और कई उसके टाइम कास्ट बहुत सारी चीजें बच जाती। आप इन चीज को फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके अपने पर्क्स हैं और प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि जहां पे लोगों की एजुकेशन है। तब अदरवाइज ये कोई ऐसा चीज नहीं थी। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, जब मीटिंग्स हम पहले एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल करके जाते थे और जाके मीटिंग्स करते थे, अब वो सारी मीटिंग्स जूम पे हो रही है। बड़े वाजे था कि कॉस्ट आपकी बच जाती है। दो चीजें हैं, कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। जस्ट स्मॉल एग्जांपल, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, मतलब वी हैव एन ऑफिस इन इस्लामाबाद एज वेल, लाहौर एज वेल। तो इस्लामाबाद में जो रेंटल्स हो गए हैं, तो आप जस्ट कि आप अगर आपकी 100 लोगों की टीम जो है वो घर से काम कर रही है, एक तो उन लोगों को टाइम बच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, कॉस्ट तो यही है, कॉस्ट तो डेफिनेटली टाइम बच रहा है कि उनको अगर 9 बजे स्टार्ट करना है काम, तो 8 बजे नहीं निकलना पड़ा और 9 बजे से 2 मिनट पहले में वो रेडी हो सकते हैं। उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच गई, इवेंचुअली कंपनी का फायदा है। उसके बाद आप उनकी जो ऑफिस की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो कॉस्ट सेविंग बहुत है इसमें, कॉस्ट सेविंग बहुत है। प्रॉब्लम वहां पे आती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की और इवन साकिब साहब ने बात की, गोल सेटिंग, आई टोटली एग्री। पॉइंट ये है कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, और हम लोगों को जहां जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है, इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है आप बताएं ना, टॉप से लेके बॉटम तक क्या हो रहा है। डू यू थिंक कि हम एथिक्स की चीजों की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस चीज का टाइम, कोविड में तो मजबूरन हुआ, कोविड में लोगों ने, अब हम बात अगर उसकी बात करें तो कोविड में तो लोगों ने 60-70% पे कट भी तो किए थे ना, सही पे कट्स भी किए थे। दोनों एंगल देखने चाहिए ना। तो लोगों ने, लोग काम कर रहे थे, घर पे बैठे हुए थे, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे। कितने लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हो गए थे, गवर्नमेंट की जो 12,000 रुपए के ऊपर डिपेंडेंट थे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस पॉइंट से इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, जहां आपको ऐसी चीजों पे पैसा खर्च नहीं कर रहे आप, जहां जो अवॉइड किए जा सकते। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आपकी एडमिन कॉस्ट 15 से 20% कॉस्ट स्ट्रेट बचती है आपकी। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम बचता है। हम जैसे बात करते हैं, अगर हम एक ड्राइव करके या बाइक पर आ रहे हैं या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा लोगों के इस्लामाबाद लाहौर कराची में 1 घंटा से 1.5 घंटा बहुत सारे लोग हैं जो टाइम स्पेंड करते हैं आने जाने में। तो वो आने जाने के जो 2.5 घंटे बचा रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली इट्स एनर्जी बच रही है, उनकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच रही है, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच रही है। सिर्फ अगर रिमोटली वर्क, और ये भी हो सकता है कि मिक्स किस्म का मॉडल हो कि जी आपने 2 डेज आपने आना है, 4 डेज या 3 डेज आपने नहीं आना। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके, स्ट्रेटेजाइज करके इसको एजुकेट किया जाए, लोगों को एहसास दिलाया जाए कि ये छुट्टी नहीं होती। और मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, मे बी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड तजर्बा है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का, या मैं मैन्युफैक्चरिंग साइड पे काफी मैंने काम किया हुआ है, कि लोगों को एहसास दिलाना कि जी वर्क फ्रॉम होम का मतलब छुट्टी नहीं होती। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल उनके होता है जी फलाना काम है, क्या मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, वो एक्चुअली दे वांट टू अवॉइड कि उनकी लीव बैलेंस में से लीव कटे और अगले दिन वो अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ 8 घंटे का वर्किंग टाइम है, उसमें से 2 घंटे मैक्सिमम अवेलेबल होंगे। गोल सेटिंग सब चीजें बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम डील किससे कर रहे हैं, हम किस मुल्क में बैठे हुए हैं, किस चीज से डील कर रहे हैं। इस एजुकेशन की अभी हमारे एकेडमिक में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसे कुछ नहीं पढ़ाया गया ना हमने कोई चीज ऐड की, ना कोई ट्रेनिंग कोर्सेज ऐड किए कि जी रिमोट वर्क को कैसे मैनेज किया जाए, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या डिफरेंस होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्यों आप, और अच्छा इसमें एक नेगेटिव चीज भी आ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसलिए कि रिक्वायरमेंट्स होती है खासतौर पर जैसे कॉल सेंटर जॉब्स वगैरह की, कि आपको अपने घर में एक स्पेसिफिक एरिया एलोकेट करना पड़ता है। जो लोग बहुत सारे कहते हैं पाकिस्तान जो मुल्क है, हमारी मेजर आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर स्टे कर रही है। हम लोग जो मिनिमम सैलरी के ऊपर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हुई हुई चीजें, तो थोड़ा सा प्रेशराइजिंग भी होता है कि उन लोगों के लिए जिनके घर में जगह नहीं है। खाली असाइनमेंट बेस्ड तो नहीं होता ना, यू हैव टू समटाइम यू हैव टू मैनेज पीपल, आपको लोगों से डील करना पड़ता है, आपको कस्टमर सर्विसेज की चीज डील करना पड़ता है। इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, इट्स अ कॉस्ट सेविंग थिंग, बट जरूरत किस चीज की है कि हम इस चीज को एजुकेट करें, हम इस चीज के ऊपर लोगों को रियलाइज करवाएं और उनको ट्रेन करें, देन इट्स अ परफेक्ट मॉडल, कॉस्ट वाइज भी और वर्क एफिशिएंसी वाइज भी। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे पास इमरान साहब, फरीद साहब और कुछ और दोस्तों के कमेंट्स हैं जो मैं रीवर्ड करके आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग
they are talking about the culture, the way we used to do our work in offices and at home. हमारा जो अब इसका मतलब ये हुआ कि we are coming to the part of this our today's topic where we need to define हमारे challenges क्या हैं वर्क फ्रॉम होम के, क्योंकि जो हम वर्ल्ड ओवर देखते हैं उसमें मुझे ये चैलेंज कहीं नजर नहीं आया जो मुख्तलिफ रिसर्च में नजर से गुजरी है कि जी वो घर के छोटे मोटे काम होते हैं, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, बेगम कपड़े धोने पे लगा देती है, वहां के इश्यूज कुछ और तरह के आते हैं, जैसे टीम कम्युनिकेशन की बात है, रिलेटिवली प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, कल्चरल डिफरेंसेस की बात भरल वो भी करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात होती है, कनेक्टिविटी का इशू होता है। तो क्या हमारे भी यही हैं या इससे मुख्तलिफ हैं? तो डॉक्टर शाहिदा आपका क्या थी? बिल्कुल आपने सही कहा, मसले मसाइल हमारे हैं बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ छोटे घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, वहाँ स्पेसिफिकली एक कमरे को ऑफिस बनाना और फिर उसको ऑफिस के लुक देना, क्योंकि उससे भी आपके ऊपर फर्क पड़ता है कि आप किस पोस्चर में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। तो ये चीज है और ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में अब नहीं रहा कि छुट्टी वाली बात है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बेबी सिटिंग इजीली कर लेते हैं फादर घर में बैठ के, अगर अम्मी जा रही है जॉब पे तो ये कल्चर बना ले, इसके फायदे बेनिफिट भी देखें, 100% ना रखें वर्क फ्रॉम होम, आप उसको नीड बेसिस पे कर लीजिए। तो एक और चीज मैं देखती हूँ, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल को सेव करने की बात करते हैं, पॉल्यूशन को रोकने की बात करते हैं, तो देखिए जब कम आपकी ट्रैफिक, कम आपका फ्यूल कंजप्शन होगा तो वहां पर भी आपका माहौल अच्छा हो सकता है। इस चीज को भी आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं कहती हूँ बच्चों, स्टूडेंट्स को जो हमने बाउंड किया हुआ है ना कि जो आपको क्लास में आना है, पढ़ना है, तो जो इंटीरियर के बच्चे हैं जिनके लिए प्रॉब्लम्स है वो वहां से बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक फ्लेक्सिबल मॉडल बना दिया जाए ऐसा। तो मुझे तो लगता है कि 100% आप नहीं करें, लेकिन नीड बेसिस पे कहाँ किस वक्त एप्लीकेशन हो सकती है वो आप जरूर करें इसमें। और मगर जो चीज मिस करता है वो एक सोशलाइजेशन होती है, एक टीम वर्क होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं जो आपको फोन पे या दूसरे वीडियोस पे बैठ के नहीं होती। ये थोड़े से जरा से इसके एडवर्स पॉइंट्स हैं जिनको अगर एड्रेस किया जाए तो आई थिंक मैनेज कर लिया जाएगा, मगर 100% आई डोंट एग्री कि वी शुड गो फॉर दैट। थैंक यू। सही। अच्छा, तो साकिब आपका क्या ख्याल है, आप क्या इन चैलेंजेस को कैसे देखते हैं? Look, you see, it's all about individual perception, right? One thing we have to remember is that a lot of times हम जब चीज की perspective देते हैं, हम अपने perception, अपने biases उन चीजों की तरफ से देखते हैं. Our experiences define how we think, right? So it's important to look at them from a purely business perspective, right? I'll give an example. So because there's a lack of opportunities of jobs within Pakistan, right? A lot of people have been able to find employment due to being able to work remotely online. So, and those organizations, those companies are paying them money, lots of money. There's a massive industry in Pakistan that is working on this. I don't see any challenges there, right? Okay, those are maybe freelancers, those are smaller organizations, but they're still working. They're working effectively. The challenge is for me, particularly from an HR professional perspective, is that we have to create a system and structure in place that enables people to work effectively, right? And then we also have to hold people accountable to that as well. So what has been successful now, as Dr. Chadha also said, is the hybrid structure, right? You create something called anchor days. So anchor days are the days that employees are coming to the office. Usually you don't keep them on Mondays and Fridays because people prefer to work from home on Mondays and Fridays. So Tuesday, Wednesday, Thursday are usually anchor days. And those are the days where you emphasize having those meetings or those conversations that have to be or necessity in person, right? That makes more sense and there's more effective usage of time. But those examples, there are cases where people come into the office, they get on Zoom and they meet with people on Zoom in the office. So what's the effectiveness? Okay. Why did we get people to commute for an hour to the office and back home just to come to the office and then also sit in a corner and get on Zoom again? Right? So एक आपका structure, एक system in place होना चाहिए, and it's important for the HR team particularly to be very, very understanding कि what is the value coming out of it? Is there any benefit for people to come in here, right? Is there are they able to? Does it help them achieve their goals easier? And are we moving obstacles for them? Are we creating more obstacles for them? Because look,
at the end of the day, as an organization, as a business, our interest is in the output that's coming out from an employee, right? अगर वो output नहीं मिल रही, is that output because they're working from home, or is it a competence in something else? I mean, the conversation is there's a big dichotomy between this, right? Some people are abhorrently against work from home because of their personal beliefs, and some people are very in favor because of their personal beliefs. But if you look at it from a very, very neutral perspective, you have to look at, do the benefits outweigh the costs? And in the majority of the cases I've seen, they do. It's all about having your groundwork ready, having a structure ready, having a system ready, and then constantly iterating and refining that system that works in accordance to your organization's unique needs, right? राइट। अच्छा, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो रागिब नूरुद्दीन ये हमसे शेयर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर और नेट कनेक्शन ये तो हमारे मुश्किल मसले हो गए। ये यानी कि हमारा एक कंट्री रिलेटेड है, इसका कल्चर से ऐसा तलब नहीं है। और कल्चर में क्योंकि हम थोड़े से लेजी वाकया हुए हैं, तो अली साहब हमें ये कह रहे हैं कि जी आप टाइम ट्रैकर लगा सकते हैं। वैसे तो आजकल आपकी स्क्रीन को भी रिमोटली देखा जा सकता है, वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड काफी सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन खुर्रम, आप ये बताएं कि इट्स अ टेक्निकल इशू विद अस, जैसे पावर का, नेट का है, या इस बेसिकली आवर कल्चरल इशू कि हम काम नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, आई थिंक सो इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल इशू। और अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेट करने में। रीजन क्या है? पिछले दिनों हम लोग हमारा क्लाइंट है, हम उनके लिए काम करते हैं और उसमें कॉल सेंटर्स मैनेजमेंट है। तो कॉल सेंटर में जब कोविड आया तो तकरीबन 70% लोग जो है वो घरों से काम करना शुरू हो गए। तो उसमें 4 फायरिंग इकट्ठी आई, 4 लोग टर्मिनेट हो गए। अब एम्प्लॉइज ने बड़ा हंगामा किया जी। टर्मिनेट इसलिए हुए कि वो उस टाइम में उसमें कोई है कि जी 3 फीट के आसपास आपके कोई ना हो और आप अलर्ट हो, इतने से ज्यादा आपकी चीजें ट्रैकर लगा हुआ था। तो पता चला कि जी वो ट्रैकर नहीं थे, वो दे आर नॉट अवेलेबल, वो कॉल्स मिस हुई, उन्होंने टारगेट कम हुआ या टारगेट पूरा हो रहा है बट कॉल्स मिस होती जा रही हैं, वो अटेंटिव नहीं है। तो खैर फायर, अब पता ही चला कि जी एक डिवाइस आ गई है, थैंक्स टू चाइना, एक डिवाइस आ गई है जो ऑटोमेटिकली हर 30 सेकंड पे अगर कोई एक्टिविटी ना हो तो वो उसको हिला देती है, वो उसको अलर्ट कर देती है ताकि आप टाइम ट्रैकर को डेविएट कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ जाती है कल्चरल की, और फिर वही बात है, कल्चर देखें कि वी कैन नॉट चेंज, कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, जनरल परसेप्शन है, जनरल चीजें हैं, हम लोग को वे आउट निकाल लेते हैं। पॉइंट ये है कि इस कॉन्सेप्ट को एजुकेट किया जाए, एजुकेट किया जाए, हम प्रॉपरली ट्रेन करें लोगों को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हुई और वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ लग्जरी। हाँ, इसके बेनिफिट हैं काम पूरा करने के लिए, इसमें ये भी तो नहीं है ना कि हम लोग रखें और उसके बाद वो टारगेट्स पूरे ना कर सके, निकालते रहे, यही काम करते रहे। मतलब पाकिस्तान में हायरिंग फायरिंग उसमें कॉस्ट होती है, इन बिटवीन जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसकी भी एक, तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मैनेजिंग वर्क रिमोटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपका टाइम बचता है, आपके पैसे बचते हैं, लोगों के लिए आपकी एनर्जी बचती है। इस हम उसमें 4 सीजन्स वाले कंट्री में सर्दी गर्मी चीजें हैं, ये सब होता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि कोई प्लान करके हम एजुकेट करें लोगों को, खासतौर पे जहां पे देखें कुछ लोग हैं जो इवन ऑफिस में हम जब नए सिस्टम लेकर आए थे तो कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी कि जी पुराने सिस्टम से नहीं निकल रहे थे। जब 100% मैं तो उस दौर कहूं कि जब हमने मैनुअल से डिजिटल चीजों पे शिफ्ट किया, सॉफ्टवेयर में चीजें आई तो बड़े रेजिस्टेंस मिली थी। इसी तरह ये भी चीज इसे कहता है, इट्स पार्ट ऑफ दैट, कि अगर हम इसको एजुकेट कर पाए, हम चीजों को प्लान कर पाए, उनको एहसास दिला पाए कि देखें ये इसके प्री रिक्विजिट क्या है, आपने कैसे करना है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या जा सकता है, तो हम इसके ऊपर सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। हुआ क्या कि हम कोविड की वजह से एकदम जंप कर गए, उसके बाद लोगों को कंफर्ट फील हुआ, मिक्स चीजें हो रही हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी, हमारे बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी। अच्छे एक्सपीरियंस इस तरह है कि कोविड में हमने हर चीज सक्सेसफुली की विदाउट डिलेइंग ए सिंगल थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमने ना किसी की तनख्वाह रोकी, ना किसी की तनख्वाह डिले की, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, और थैंक्स टू अवर टीम जिन्होंने रिमोटली काम किया। तो उसमें इश्यूज थे, 80% लोग परफेक्टली काम करते थे, 20% लोग मिस हो जाते थे। वो जब आप उनकी अटेंडेंस मिस होती थी तो कोई ना कोई अम्मी ने बुला लिया था कि वो चाय बनानी थी, ये था चीज विच इज पार्ट ऑफ नॉर्मल है, ऑफिस के अंदर भी तो टाइम जाया होता है। पॉइंट ये है कि इसको प्रॉपरली एक सब्जेक्ट बना के एजुकेट करें,
जो स्टूडेंट जो ऑफिसर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी एंड पे, उनको भी वो थोड़ा सा गाइड करना शुरू करें कि चीजें कहाँ पे आ रही हैं। ये होगा फ्यूचर, इसके जो बेनिफिट आए हैं और जो कॉस्ट सेविंग्स आई हैं ये इतनी ज्यादा लुक्रेटिव है कि इसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा। वी हैव टू हैव अ मिक्स। आप 30% इनिशियली स्टार्ट कर लें, 70% फिजिकल वर्क हो गया, 30% रिमोटली, आप इसको निकाल नहीं सकते। इतना बड़ा बेनिफिट ये स्टेप ये दे चुका है आपको। तो मेरे हिसाब से कल्चर को क्या इल्जाम दें, एजुकेशन की जरूरत है। इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक करके एजुकेट करते हैं ताकि लोगों को रियलाइज हो कि बेनिफिट है, इसको बेनिफिट समझें। ओके अच्छा, मुझे एक और एंगल से मैं चाहूंगा कि हमारे स्पीकर्स इस मौजू को देखें। वैसे तो हमारी ऑडियंस माशाल्लाह आज इतनी ज़हीन और वेल वेरी गुड क्वेश्चंस हैं जो हमसे आगे चल रहे हैं, but we have to go with the pace and the way we have outlined our webinar, friends. तो अब मुझे एक एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में हुआ। काफी अर्सा पहले मैं यूएन की एक असाइनमेंट पे वहां पे गया, तो 1 ही पाउंड था जो उन्होंने सिक्योर किया हुआ था, कंपाउंड सॉरी, तो जिसमें हम सब लोग रहते थे जो फार्मर वहां जाके काम कर रहे थे। तो डिनर या ब्रेकफास्ट में मुलाकात होती, उसके बाद कोई गो फॉर हिज आवर ओन असाइनमेंट। वह एक जर्मन साहब ठहरे हुए थे, तो गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कोई पॉलिसी प्रोसीजर्स डेवलप करके देने थे एक इंटरनेशनल एनजीओ को। तो बात हुई कि हाउ लॉन्ग यू विल बी हियर, हाउ डू यू फील, गपशप में। तो उन्होंने कहा जो आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 वर्क डेज विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मुझे उनके मेंबर्स कंप्लीट करने हैं। तो लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट 30 डेज वर्क, इज अबाउट 20 डेज वर्क। तो मैंने उनको कह दिया है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई इसको 30 डेज के कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, आप 20 डेज में मैं इसे बड़ी आसानी से आपको कंप्लीट करके दे सकता हूँ, तो यू कैन रिवाइज द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा अपने कल्चर के हवाले से, मैंने कहा भी देन यू विल लूज योर कंपनसेशन मनी। On those days, it was about $3,000 per day. तो मैंने कहा you are losing about $30,000. वो कहने लगे yes, I know this, but how can I ask to give my money where I think I do not deserve it? When I can complete in 20 days, how can I ask them to pay me for 30 days? This is against my conscience. तो मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग था कि हमें तो ये बताया गया था कि आप कंसल्टेंट हैं तो आधा काम करें और आधा काम ऐसा करके आएंगे, आपको दोबारा बुलाएं। ना इलेक्ट्रिशियन पूरा काम करके जाता है, ना प्लम्बर करके जाता है, ना ही सियासतदान करते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने ये इस बैकग्राउंड से लाना चाह रहा हूं कि आप ये बताएं कि अब वर्क फ्रॉम होम तो होगा क्योंकि इसकी अपनी बेनिफिट्स हैं जो वर्ड ओवर रियलाइज। वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट? हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वी हैव टू मेक देम रियलाइज द स्टूडेंट्स टू बी ऑनेस्ट, या ये हमारे वर्क प्लेस पे तय हो, या हमें दोनों जगहों पे करना है, और करना है तो कैसे करना है? दिस इज द क्वेश्चन। वी विल स्टार्ट विद डॉक्टर शाहिदा। जी साहब, अच्छा, ये एक्सपीरियंस बहुत सारी रिसर्चेस भी की गई, उन पे भी हमें हमारी जो फाइंडिंग्स है उससे बताया कि क्या हमें चैलेंजेस हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, हर लेवल पर, इवन स्कूल लेवल से शुरू होकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। यकीनन स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करना इज नॉट डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, और बात सिर्फ ये है कि वही बात के जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो हर सूरत करेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता वो क्लास में भी बैठ के वीडियो पर अपने फोन पे बिजी रहता है, लेक्चर की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो मुझे भी ये होता था कि प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई वाज कंडक्टिंग लॉ की क्लासेस, तो उसमें ये होता था लॉग इन हुए और स्टूडेंट और उसके बाद गायब हो गया। मुझे अंदर से परेशानी होती थी क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि मैंने जब एक टाइम निकाला है प्रिपेयर्ड फॉर दैम तो ये बेनिफिट ले उससे, लेकिन जो सीखना चाहता था फिर मैंने अपने आप को समझाया वही सीखेगा। यू कांट फोर्स somebody to learn, especially in case of adult. तो ये जो जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा, बट वी शुड ट्राई टू डेवलप सर्टेन मॉडल्स, किस में कहाँ कामयाबी है, किस पे इम्प्रूव किया जा सकता है, वी कैन वर्क ऑन इट।
अभी पीएचडी की एक नई पॉलिसी आई है और पीएचडी की पॉलिसी में देखिए आर.एस. ने लिखा है कि 2 साल की रेजिडेंसी मस्ट है, यानी जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है वो उस शहर में, उस इलाके में 2 साल तक रहेगा। मैंने उनको जवाब में लिखा, कमेंट्स डालने थे, मैंने कहा आजकल जब आप टेक्नोलॉजी में बात करते हैं और आप कहते हैं हर चीज आप दूर से बैठ के कर सकते हैं, मैंने प्रोड्यूस किए पाकिस्तान में बैठ के मॉरिशस में 2 पीएचडी प्रोड्यूस किए, इवन विदाउट टॉकिंग अ सिंगल टाइम, जस्ट थ्रू ईमेल्स, जस्ट थ्रू चैटिंग। तो ये आप क्यों कहते हैं कि जी रेजिडेंसी मस्ट कर रहे हैं, आप क्यों वापस पिछली तरफ जा रहे हैं? आप स्टूडेंट को क्लासेस के हद तक कर दें, लेकिन जब वो अपनी थीसिस लिखते हैं तो यू शुड अलाउ देम टू सिट एनीवेयर, कहीं भी जाके वो लिख सकता है, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में या उसी शहर में हो, किसी भी इलाके में अपने बैठ के काम कर सकता है। तो यस, वी नीड टू, स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, स्टूडेंट को कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़े लोगों जितने होते हैं ना उनको समझाना मुश्किल है, सीनियर जो पॉलिसी मेकर है उनको बताना मुश्किल है कि दे हैव टू बाय दिस आइडिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा साकिब, आप बताएं, डॉक्टर साहब तो कह रही हैं स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, वो तो समझ जाएंगे, तो मैं और आप ही हैं जो मुश्किल पैदा कर रहे हैं सोसाइटी में। हाउ वी कैन टीच देम? So it's we're sort of sidetracked from the main concept, but this is an interesting area. So I have I will always have a fundamental disagreement with people that on this topic, and regardless, that's how you create, a very meaningful conversation. So my belief is that there's this value of integrity that stems from your home, right? Organizations, systems, and all of these things, they can have the policies and structures in place, and people will adhere to them as well because they're forced to. But jo internalized aapki cheez hai na, that exists inside of you, that's something, those stem from your upbringing and the values that you're given from home, right? It's sort of unfair that you expect a person to join an institute or an organization, and for that organization institute to take over that role of parenting and to transform that person into a model human being. That's not a realistic approach, right? Yes, they do support that. Yes, they do have an influence on that. And yes, they do create there are a percentage of that equation that are there. But do they have a major stake? Absolutely not. That is defined by the values that you see and the behaviors you see at home, right? As kids, children absorb the values they see at home. But if they see someone doing something wrong at home, they will eventually feel that that's right. And that will eventually become a behavior and it'll become a part of their personality, right? And then you can't really change that. That's something that only changes with a lot of concentrated effort and focused effort. And वो भी commitment होती है उसपे, right? It's sort of like अब बात करते हैं ना कि if your organization has all the practices in place, but there's this thing called the fraud triangle. I don't know if you've heard of it or not, right? So fraud triangle में कहते हैं कि 3 चीजें होती हैं. There is the motive, the rationalization, and the opportunity, right? So if then a person is presented with these 3 areas or these 3 things, and they feel कि even policy के through circumvention, they will do that. But if an individual internally does not believe that this is right and this is wrong, and it goes contrary to their personal beliefs and their, be it religious, be it personal, be it whatever, then they, regardless if these things are even present, ये लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये आपके लूप होल है, इसको सही करो, right? So that internalization of that integrity, that self accountability, that's something that has to be built in, and that's built over time. And a lot of that stems from a person's home environment and how they're raised, and sort of the different factors that influence them as they're growing up. थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमें दिया है। तो खुर्रम साहब, आपके ख्याल में क्या है? जैसे अभी हमारे एक यहाँ पे खालिद साहब ने गालमन लिखा है कि उनकी मिसेस फाइनेंस में काम करती हैं, उन्होंने तो घर से जब से काम शुरू किया तो उनकी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो क्या ये अगर खवातीन घर से काम करें वो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जब शोहर करते हैं तो वो तो इल्जाम ही अपनी खवातीन को देते हैं कि हमारा नहीं है, तो इट्स अ कल्चरल फिनोमेना? नहीं, again, I don't think so. It's about like it's a gender-based thing or something. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और खासतौर पे अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इसलिए कि जो आने जाने का टाइम बचा है। जस्ट एग्जांपल, आप किसी भी एक वेदर में आप एक जगह जाते हैं, आप एग्जॉस्ट होके जाते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, अगर आप स्टार्ट ही आप 1 घंटे की 1.25 घंटे की जर्नी के बाद एग्जॉस्ट होके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बैलेंस होते होते 30-40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो आप 9 बजे घर में ही हैं, सेफ एंड सिक्योर, आप अपने काम पे जाके बैठ गए, बहुत अच्छी बात है। तो दफ्तर से चला हूं, नुमा देखिएगा प्लीज। Okay, so it's not about gender or something. It's about a sense of responsibility or nature of work as well.
कभी कभी जो फाइनेंस का काम है उसमें बहुत ज्यादा, मतलब सारी बात है, मैं खुद फाइनेंस फील्ड से हूँ, तो रिपोर्टिंग है, चीजें हैं, मॉनिटरिंग है, ये रिपोर्टली अगर आपका सिस्टम अच्छा है और आप कनेक्टेड हैं तो बड़े आराम से आप इस चीज को इसको कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहां जाके आती है जहां पे जॉब की रिक्वायरमेंट, और सेकेंडली अगर वो फाइनेंस मैनेजर है खातून, तो जाहिर बात है वो इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कि शी अंडरस्टैंड्स हर रोल, उन्होंने उस चीज को एब्जॉर्ब किया, उनकी मैनेजमेंट एब्जॉर्ब किया, अलाइन है चीजें। हम बात वहां पे कर रहे हैं जहां पे लोगों को अंदाजा है नहीं, अब तक अंदाजा नहीं 2-3 साल गुजरने के बावजूद, कि जो रिमोट वर्क होता है उसका पर्पस क्या होता है, वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। इनिशियल हमने बात की कि जॉब, एक जॉब या 2 जॉब नहीं, देखिए जैसे डॉक्टर शाहिदा ने बात की कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप बाउंड है 9 to 5 या पर्टिकुलर आवर्स, कोई 4 आवर्स आपने देने हैं या आपने स्प्लिट आवर्स देने, देन आपकी इंटेग्रिटी यही है कि आप उसमें वही काम करें जो आपको कहा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज अगर समझ आ जाए। पिछले दिनों एक खाली पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, शार्क टैंक इंडिया एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, शार्क टैंक यूएस था, शार्क टैंक इंडिया, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी गुड। उसमें एक था कि एक एंटरप्रेन्योर था, तो उसने कहा आपने नौकरी कर रहे हो? उसने कहा जी मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो उसने कहा कितना अर्सा हो गया? उसने कहा जी पूरा मैंने बिजनेस 1-1.5 साल में डेवलप किया, मैं फलानी जगह नौकरी कर रहा हूँ। तो उसने कहा प्रैक्टिकली आपने उन जहां काम करे उनकी कॉस्ट के ऊपर जो है वो अपना बिजनेस डेवलप कर लिया, और अब आप अभी तक आप छोड़ने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है छोड़ने। तो ये हर जगह है, और इट्स नॉट अबाउट ओनली पाकिस्तान, हम साउथ ईस्ट एशिया में तो हर जो है, और मुल्कों में एशिया अरब कल्चर में भी चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को एब्जॉर्ब करने की, हजम करने की और समझ लेने की कि आपको बेनिफिट है। अगर मैंने जो हम बात करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना चाहिए कि अगर वो वर्किंग रिमोटली है तो कुछ ना कुछ अगर वो सेव कर रहे हैं तो दे हैव टू शेयर। बहुत जगह जैसे बात हुई, इनिशियल की बात कर रहे थे कि घरों में बिजली का इशू है, नेट का इशू है, तो अगर हम एक्सपेक्ट करें अपने एम्प्लॉय को कि जी हमने उसको कर दिया, हमने चले 80% सैलरी कर दी, वी हैव, अगर हम अपनी कॉस्ट सेव करें तो वी हैव टू शेयर विद अदर पीपल। तो पॉइंट सिर्फ वो ये जो मैं पहले कहा था, वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज दिस कॉन्सेप्ट, जिसमें लोग भी एजुकेट हों और सिस्टम को ऐसे चलाया जाए। और लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वर्क फ्रॉम होम को ये मत सोचें कि ये आप अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्स्ट्रा पैसे बनाने की, ये आपको सेविंग हो रही है, आप टाइम बचाएं, आप अपनी एनर्जी को यूज करें। अगर आप 9 to 5 काम करते हैं रिमोटली और आप रूटीन में 6:30 घर पहुंचते थे एग्जॉस्ट होके, आप एग्जॉस्ट होके नहीं आए, आप 5 बजे के बाद अपना टाइम यूटिलाइज करें। समझ की बात है, इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट्स, हम तो ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं चीजों की। जब हमने ये बात, जैसे आज हमारा वेबिनार का टॉपिक है, हमने बात करना स्टार्ट कर दी, और भी लोग इस बात स्टार्ट करेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी, सॉल्व होती जाएंगी, सिंप्लीफाई होती जाएंगी कि जी एक्सपेक्टेशंस क्या है, चीजें क्या है। जब एम्प्लॉय हायर होगा या उसको असाइन किया जाएगा तो उससे 100% बिठा के ये करना है ये नहीं करना। स्टिल देयर आर फील्ड्स जिसमें आपको फिजिकल वर्क की जरूरत है, प्रेजेंस की जरूरत है। तो एक हाइब्रिड अप्रोच, जो हाइब्रिड अप्रोच जो है मेरे ख्याल में इस पे कर सकते हैं। बट अगेन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्यों? आपका वेस्टेज निकाल देते हैं हम। लीन कोच, लीन आपका कॉन्सेप्ट ये था कि आप वेस्टेज निकाल देते थे, अपने प्रोसेसेस में से जो वेस्ट होता था निकाल देते थे, आपका 7 दिन का काम 3 दिन में हो जाया करता था। ये भी वही चीज है, आप वेस्टेज निकाल रहे हैं, वेस्टेज निकाल रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं। सही। अच्छा, बहुत अच्छा नुक्ता शाजिया सुल्ताना साहिबा ने शेयर किया है कि इससे विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ जाएगी और विमेन विल एबल टू अवेल मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर्क फ्रॉम होम की शक्ल में। तो ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है कि ये है तो मस्ट फॉर एनी इकोनॉमी, फॉर एनी वर्क इंडस्ट्री, कि हमें इसकी तरफ ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। तो आइए आखिरी हमारा जो हिस्सा जिसमें हमें बात करनी है, मैनेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ रिमोटली वर्किंग एम्प्लॉइज। वो क्या मैकेनिज्म है? कुछ हमारे यहाँ लोगों ने शेयर भी किया, जैसे ये कहा गया कि जी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लैपटॉप्स के अंदर कैमरे भी हैं, स्क्रीन शेयरिंग के भी मैकेनिज्म मौजूद हैं। लेकिन ये वो सब चीजें हैं कि जो एक्सटर्नल चेक है। इंटरनल चेक क्या होगा? क्या हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ा सकते हैं अपने लोगों की, कल्चरली उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट दे के वो ये काम करवा सकते हैं, केपीआईज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास मैनेजमेंट टूल क्या है? क्योंकि जो आईटी या टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो बेसिकली कंट्रोल के हैं, वो ना मोटिवेशन देते हैं और ना स्किल को बढ़ाते हैं। they control mechanically, but we are human being, we need motivation, inspiration, जो चीज ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमें इंस्पायर करते हैं, वो चीजें क्या है? जी रियासत साकिब रियासत।
Yes. Okay. So it's interesting, right? So when you think about performance and output, right? If आप okay, look, your goal is to count up to 1 to 100 in this many days, right? So the Okay. expectation is that the employee will do that, we achieve that, right? So इसी तरह when you have a good goal setting, आप OKR कर सकते हैं, आप KPIs कर सकते हैं, you can do quarterly check-ins, monthly check-ins, जो भी आपका system है. If you have a good and effective system in place, and then you have people managers, this is a caveat जो लोग अक्सर miss कर रहे हैं. You have people managers that understand and know how to work with the system, then it's effective, right? So, for example, you might have the best performance management system in the world, but you have people managers that completely disagree with, and they're constantly circumventing it and calling people at odd hours and telling them, "Aapne ye nahi kiya, aapne wo nahi kiya, wo nahi kiya." So it destroys the purpose of their entire system. So having a good system in place is also important, but then also training your managers and training your people leaders on how to effectively manage performance in this structure, in this way of work is very, very important. And मजे की बात है वहां पे ही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आती है, राइट? होता क्या है कि so for example you have hybrid structure, right? आपके you have 5 employees. Let's say 4 of them come in a hybrid way, and one of them, due to personal needs, is working remotely fully. So there is something known as a proximity bias. Because 4 people are coming in the office, that manager will unsubconsciously favor those people more than the person who's only working remotely from home. But the person remotely from work कर रहे हैं, they're carrying the maximum load, right? अगर वो ना होते, the entire क्या कहते हैं team would collapse. So see that's also an issue. So it all underpins. There are two main things: having an effective system, technology driven, that's effective, intuitive, right? That's not constantly having people fill out Excel pages, right? That's also not effective. And then having managers that are properly trained, that understand how to manage people, how to give them the freedom to draw a performance, right? There are different structures and ways to do it, right? I'll just give you one example. In consulting, we were working on assignments for international organizations remotely from Pakistan. Not once did any manager ask us, "Oh, what did you do all day?" Right? Because our value or our result was driven based on the output we were making. And by virtue of the way we were structured, that output was on a shared platform. So we had our outputs designed entirely on a shared platform. So everybody could look at who's working on it, who's progressing, what's happening, what's not happening. So we knew what was expected from us. We knew that we were accountable for this, and we knew we had to work on this. And then our managers were very, very clear, okay, this is what you need to do. Now I will get out of the way. I want you guys to deliver. And that sort of created this relationship and this culture that allowed us to perform, right? And we were happily working more than what was expected from us because we had that freedom. Right. Thank you. जी राघव, आप बात करना चाह रहे हैं? इनका राघव का सबका जरा अनम्यूट करें. So then he can speak. Thank you very much. Can you hear me? Yeah, we are hearing you. Yeah, thank you. So 2 points I would like to add here. To manage the performance of the staff who is working from the home. First of all, the performance review usually happen yearly in organization, or some organization do it 6 monthly. So the frequency of the performance review can be reduced, like quarterly review with the supervisor. And so it will help both the organization and the employee. So his performance is being reviewed quarterly, so he will be more conscious about his output or productivity. Number 2, so we can also link up this work from home with the reward and recognition system as well. So if the people will deliver his whole KPI in 1 quarter or 2 quarter, whatever the time frame is set up, so we can award him some points or some reward and recognition in terms of any cash reward or any gift, or some hotel coupon, like he can go with the family and have a dinner with the family. So that kind of the things will motivate the staff, so he will be more productive for the organization. These 2 points I would like to add here. Thank you. थैंक यू राघव, बहुत अच्छे पॉइंट आपने शेयर किए हैं. इसमें मैं थोड़ा सा यस करता चलूं कि जो इस वक्त प्रैक्टिसेस हैं
एक तो जो हमारे KPIs हैं उसे एनुअल ही नहीं 6 मंथली भी अब नहीं चलेगा, वी हैव टू स्लाइस देम डाउन, कि शायद आपको जो है वो बाई वीकली जाना पड़े, क्योंकि वो दे आर वर्किंग रिमोटली। सेकेंड, जॉब डिस्क्रिप्शन को KPI के साथ कनेक्ट करके फिर उसके जो कहते हैं उसको न्यूमेरिकल टारगेट सेट करना, इट्स अ वेरी हाईली स्किल्ड जॉब, जो शायद हमारे यहाँ इतना नहीं है, बट वी हैव टू गो टूवर्ड्स दीज थिंग्स। तो सेटिंग द टारगेट, देन स्लाइसिंग डाउन इनटू 2 वीक्सली और मंथली, और फिर उसको न्यूमेरिकल उसके अंदर चीजों के अंदर लेके जाने की जरूरत होती है। दूसरी बात इसमें मैं ये अर्ज करता चलूं, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया कि फाइनेंशियल रिवार्ड। तो देखिए, फाइनेंशियल तो उसको सैलरी मिल रही है, फर्दर इंसेंटिव वाइज कुछ काम ऐसे हैं जैसे सेल्स के या बाकी, उनको करना तो आसान होता है, लेकिन जो बैक ऑफिस काम है उन्हें करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन द नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स एज वेल, ताकि जो लोगों का खासतौर पर, जैसे हम लोगों को लर्निंग के ऑब्जेक्टिव ज्यादा दे दें, क्योंकि नाउ दे हैव सेव्ड टाइम ऑफ द फ्रॉम द ट्रैवलिंग। जैसे वो 2 घंटे का टाइम था, वो 3 घंटे का टाइम था, तो अब हमें उन्हें मजीद सर्टिफिकेशन करने की सूरत में, फर्दर एजुकेशन की सूरत में भी मोटिवेट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारे एम्प्लॉइज की या जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसके एक करियर के अंदर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। खुर्रम, आप क्या कहेंगे? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। बात है कि हम मतलब चीजों को ना, इट विल बी अ न्यू नॉर्मल, इट विल बी अ न्यू नॉर्मल। तो हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ रिवॉर्ड्स की, क्योंकि हम उनको काम करने के लिए ऐसा वो तो नहीं कर सकते कि आप अपना काम टाइम पर करें। वही बात हुई कि हमें नमाज पढ़ने का जो है ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हमें जो है ना वो इनाम मिलना शुरू हो जाए। तो ये तो काम है जो बेसिक है, बट हाँ, हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि उनकी चीजें पोर्ट्रे हो रही हैं। एक दफा एक बहुत बड़ा ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं उनकी चीजें डिस्प्ले नहीं हो रही होती, जो फिजिकल मौजूद है वो ज्यादा लोगों की नजर में आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम उसको अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाए, चीजें डिजाइन हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है, जो परफॉर्मेंस आपकी है वो नजर आ रही है, आपने ये काम कर लिया, बैलेंस स्कोर कार्ड्स हैं और जिस तरह की चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, कि लोगों को पता हो कि जी दे आर विजिबल, आई एम हियर टू बी सीन एंड हियर टू सी यू वाला कॉन्सेप्ट अब जो है ना वो ऑनलाइन ही चीजें का। तो अगर हम ऐसी चीजें बनाएं कि जिसमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना शुरू कर दें कि लोग विजिबल हो, उनका काम विजिबल हो, उन्हें पता हो कि जी वो अगर दिल लगा के काम करेंगे तो वो एक्नॉलेज हो रहा है इन चीजों के साथ में। और फिर वही बात है कि इन चीजों को उनको रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए वो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत, अगर इसमें टाइम बच रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन ने भी बड़ा टाइम बचाया है, उस हवाले से अगर किसी किस्म के रिवॉर्ड्स हो, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं जिनमें ये भी टॉपिक कवर हो, इसलिए इट विल बी अ न्यू नॉर्मल। वेरी वेरी। अच्छा, ये शाजिया ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट और हमसे शेयर किया है कि इंस्टीट्यूशन को मजबूर किया जाए कि वो 2-3 डेज कंपल्सरी वर्क फ्रॉम होम जो है वो करे। शायद उनका मतलब ये है कि इससे हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन का या विमेन वर्किंग क्लास को इससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर शाहिदा, आप बताइए, अगर ये कंपल्सरी हो जाए तो काम आज चल सकेगा हमारा, या हमें उससे पहले एक कल्चर डेवलप करने की जरूरत है कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? फ्रैंकली, अब जहां 6 डेज अ वीक भी काम हो रहा है, वहां भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली परफॉर्मेंस के, प्रोडक्टिविटी। वैसे अगर हम इनसे पूछे, इन शाजिया साहिबा से पूछे क्यों होना चाहिए, देखते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव, क्या इनको क्या बेनिफिट नजर आ रहा है। लेट्स सी भाई क्यों होना चाहिए। अगर वो कोई पॉइंट है ना, मतलब आस्क इज देयर। शाजिया साहिबा का माइक अनम्यूट करें। जी जी बिल्कुल, अनम्यूट करके वो आप बात कर सकते हैं। भाई रीजन बताया ना, क्या बेनिफिट नजर आ रहा है, वो हमें पता चलेगा कि जी ये बेनिफिट है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच प्रोडक्टिव वेबिनार। सर, मैं सिर्फ इसलिए ये चाह रही थी क्योंकि आप देखिए, अगर हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमने ये देखा है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट से अच्छा इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है चीजों को लागू करने का। अगर आप खाली इदारों पे छोड़ देंगे तो इदारे शायद कभी भी ना करें।
क्योंकि इदारे तो चाहेंगे कि लोग आके अटेंडेंस लगाएं और वो हाजिर भी हों और वो नजर भी आए और सारा कुछ हो। सो ये अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन शाजिया प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो पहले ही 2-3 दिन अनाउंस्ड वर्किंग फ्रॉम होम, तो दफ्तर आते ही कम है, ये तो और मसला हो जाएगा। ये सही आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। रीजन बताएं क्यों? मैं सिस्टम की आपको बेनिफिट क्या नजर आ रहा है इसमें? दिस वी वांट टू लिसन। आपको क्या बेनिफिट नजर आ रहा है? क्यों 3 दिन होना चाहिए? क्या बेनिफिट होगा? मेरा ख्याल है हमने अभी इसके ऊपर खासी बहस की है और बड़ी अच्छी बातें निकल के आई हैं। मुझे इसमें सबसे बड़ा जो फायदा नजर आता है वो जहां कॉस्ट रिकवरी की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। आप देखिए हमारे इंस्टीट्यूशन में औरतें क्यों आगे नहीं आती? क्योंकि घर में बच्चे होते हैं और कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए माँ का वह रहना बहुत जरूरी होता है। सो वो बहुत जरूरी है खवातीन के लिए स्पेशली कि आप उनको करें। कुछ जगहों पे मर्दों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनके पेरेंट्स बुजुर्ग होते हैं या खवातीन के। कई दफा हमारे पास लोग आके एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि प्लीज हमें 3 महीने की हाफ डे दें या रिलैक्सेशन दें क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देखना चाहते हैं। कई दफा लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को गिल्टी समझ रहे होते हैं, बच्चों को कुछ हो जाता है तो इश्यू हो जाता है। I really appreciate this human side of your thinking कि ये हमें काम के साथ साथ इन रिलेशनशिप और कल्चर्स और फैमिली को भी साथ लेकर चलें। I appreciate your point of view. Thank you very much. तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आखिरी हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं। डॉक्टर शाहिदा, would you like to share your thoughts on this topic? जी, अभी पॉइंट उठा कंपल्सरी। देखिए कोई चीज भी कंपल्सरी करना मैं तो नहीं समझती कि इस चीज को मुसल्लत किया जाए। देयर शुड बी अ चॉइस दैट कैन बी गिवन टू पीपल, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड द गर्ल्स। यस, यू कैन गिव अ चॉइस। देयर शुड बी अ पॉलिसी इन द इंस्टीट्यूशन एंड द कंपनी कि ये ऐसे कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन आ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एवरीबॉडी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अच्छा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर इज नो मोर न्यू, तो बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल मीन्स कि आपकी टाइमिंग्स आपको पूरे करनी है, सिवाय इसके कि आप सुबह में 9 बजे के बजाय आप 10 बजे आ सकते हैं। बीच में लंच ब्रेक आप 1 के बजाय आप बच्चों को लेना है 2 बजे पिक कर सकते हैं, बट टोटल ड्यूरेशन यू हैव टू स्पेंड द सेम पर डे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप बिल्कुल ये मॉडल चूंकि इंट्रोड्यूस करना है और आप समझते हैं हम सब के बेनिफिट हैं इसके, तो टू स्टार्ट विद आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से कह सकती हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए जो चाहते हैं उनके लिए आप इस किस्म की चॉइस रखें अपनी पॉलिसी में एंड सी द रिजल्ट्स। अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन कैरी ऑन। तो ये इस तरह से आप मेंटली उनको प्रिपेयर करें। अच्छा, मोटिवेशन की बात थी अभी कि साहब ने कहा कि जी मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन पे बहुत थ्योरीज पढ़ ली, बहुत रिसर्चेस करवा ली, PhDs करवा लिए और लातादाद बातें ऐसी हैं कि सीनियर लेवल पर मैनेजमेंट को ना तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से मोटिवेट कर सकते हैं, वहां तो जॉब इटसेल्फ एक पार्ट होती है जिससे सेटिस्फेक्शन होती है। वहां अगर आप पैसों की बात करें, स्पेशली मॉनेटरी बेनिफिट्स हैव नो मीनिंग फॉर द सीनियर लेवल पीपल। यस, फॉर द जूनियर लेवल यस इट मैटर्स, इट हैज सम मीनिंग। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पर आप किस मोटिवेशन की। और हमारी थ्योरी तो हमेशा से ये है कि लेट द पीपल वर्क थ्रू देयर इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि आज और हमेशा इस बात पे हम बहस करते हैं कि अगर आपने किसी को इंक्रीमेंट दिया तो मत एक्सपेक्ट करें कि ये इंक्रीमेंट लगते ही उसकी परफॉर्मेंस एकदम से शूट अप कर जाएगी। नो, इट विल नॉट हैपन, बिकॉज इंक्रीमेंट शुरू में लगेगा, वो खुश होगा, लेकिन बाद में वो समझेगा इट्स अ पार्ट, इट्स द राइट ऑफ द पर्सन, तो वो फिर उसकी बेसिस पे कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो मेरा अपना ख्याल है मोटिवेशन को भी हमें दूसरे मायनों में रखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कितने बेनिफिट्स हैं लाइक दैट। तो ये बिल्कुल ये टू स्टार्ट विद, मैं समझती हूँ, मैं अभी बैठे बैठे मुझे आइडिया है कि मुझे भी नए टॉपिक सेलेक्ट करने अपने स्टूडेंट्स के लिए, PhD के लिए, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस टॉपिक। हाई लेवल पे हम बात करते हैं बिल्कुल, और इस पे हम देखते हैं एंड आई विल शेयर विद द रिजल्ट्स विद यू इंशाल्लाह ताला। Thank you. We love that. invitation. We love that. Thank you. हाँ जी, मसूद साहब, आप प्लीज you can unmute yourself. अभी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। साकिब साहब की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? मैं मसूद साहब, मोहम्मद मसूद साहब जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी मोहम्मद मसूद रहमान, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, पावर डाटाकॉम, एक लिस्टेड कंपनी है इस्लामाबाद में। जी जैसा कि हमारा वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटी में काम की जो क्वालिटी है वो कम हुई है,
तो अच्छा। उसके नतीजे में कि ये जो हमारा आउटपुट था, पहले कोहिजन हम काम करते थे, डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में होते थे, अब हमें ना वो जो ग्रेजुअली उसमें इतना इम्प्रूव नहीं हुआ काम हो रहा। इसमें मेन चीज ये है कि हमें वर्क जो एथिक्स है ना, वो टास्क बेस पे ले जाना चाहिए। टास्क बेस पे हो, असाइनमेंट बेस पे हो, विद टाइमलाइंस। अगर हम जनरल ऑडिट कर रहे थे या प्री ऑडिट कर रहे थे या वो अब हमें वो जो वर्क प्रोसीजर्स हैं वो शिफ्ट करने हैं। सही सही। वो जो हमारा पुराना जो रोल था, जब ऑफिस में बैठ के काम करते थे, वो अब वो चीजें वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटी में काम नहीं आएंगी। अब हमें अपने आप को ग्रूम करना है कि उस जो पुराने प्रोसेस थे उनको नए मॉडल्स में किस तरह लेके आना है। उस पर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि किस तरह उसको हम इम्प्रूव कर सकें फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जो प्रैक्टिकल बात की है। ये मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है कि जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो प्रोडक्टिव लेवल नीचे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केपीआई सेट करने से लेकर उनके रिव्यू करने का अंदाज हमें बदलना पड़ेगा और टास्क और असाइनमेंट को ज्यादा सामने लाना पड़ेगा। जितना हो तो वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम खत्म हो गया है। गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो रही थी, हमारे ऑडियंस ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ऑब्वियसली हमारे स्पीकर तो हमेशा अच्छी बात करते हैं क्योंकि वो तैयार भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, डॉक्टर शाहिदा साहिबा, वरुण साहब और बाकी फ्रेंड्स, मैंने नाम पहले भी उनके लिए हैं। आई एम रियली अमेज्ड बाय देयर थॉट्स and the points they have raised over here, and we hope to continue this forum as a discussion forum. Inshallah, we will announce and reach you all through email, and we'll let you know when we will have the next session as well. Thank you very much, and Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.